हेलो स्टूडेंट्स। इस ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, और रैंक एंड नल्टी की बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। दिस इज एग्जांपल। द मैप D from fx space of all polynomials to fx given by D of fx equal to f dash x, derivative of f. If fx equal to a0 plus a1x plus a2x square and so on plus an x raised to n, then f dash x equal to a1 plus twice a2x and so on plus n an x raised to n minus 1. By property of derivatives, we know that we have d of fx plus gx. This is equal to fx plus gx dash, and derivative of sum of two functions. This is same as f dash x plus g dash x equal to d of fx plus d of gx by property of derivative, and d of alpha fx. This is equal to alpha fx dash equal to alpha f dash x. This is equal to alpha d of fx. Hence D is a linear transformation. D is a linear transformation. D is called differential operator. D is called differential operator or differential linear transformation. Differential operator or differential linear transformation. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द मैप f from fx space of polynomials with coefficient from the field f fx to fx given by इसको हम t से डिनोट करते हैं f, t fx to fx given by t of fx equal to integral fx dx. Integral fx dx. This by property of integration, this t is a linear transformation. By property of integration, we have t of fx plus gx. This is equal to integral fx plus gx
dx, and this is integral of fx plus gx is same as integral fx dx plus integral gx dx, and this is same as t of fx plus t of gx, and t of alpha fx equal to integral alpha fx dx, and by property of integration अल्फा स्केलर बाहर आ जाएगा, अल्फा इंटीग्रल fx dx, and this is equal to alpha integral t of fx. Hence t is linear transformation. This is called integral linear transformation. Thus t is a linear transformation. T is a linear transformation called integral transformation. Integral transformation. Given by integral fx dx equal to integral 0 to x ft dt. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. Let V be vector space. V be a vector space and W a subspace of V. Subspace of V. The map denoted by eta from B to B by W given by eta of B equal to eta of x equal to x लेते हैं. Eta of x equal to x plus W is a linear map. चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखें चाहे लीनियर मैप, दोनों एक ही चीज़ हैं. तो कैसे? फॉर दिस eta of x plus y, बाई डिफिनीशन ऑफ ईटा ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू, एंड बाई डिफिनीशन ऑफ एडिशन ऑफ कोसेट एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस डब्लू प्लस वाई प्लस डब्लू. ये प्लस जो है
वी बाई डब्ल्यू कोसेंट स्पेस का प्लस है जिसको हमने सर्किल में किया हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू ईटा ऑफ एक्स प्लस ईटा ऑफ वाई, एंड ईटा ऑफ अल्फा एक्स, this is equal to alpha x plus w, and by scalar multiplication of coset this is equal to alpha x plus w, and this is equal to alpha t of x, अल्फा ईटा ऑफ x, यहाँ पे हमने ईटा लिया हुआ है। Thus eta is a linear transformation, eta is a linear transformation, this is called natural linear transformation, called natural linear transformation। अब यहाँ पे क्या है, क्लियरली ईटा इज सर्जेक्टिव, क्लियरली ईटा इज सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ईटा इज ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑनटू कैसे है, कोई भी वी बाई डब्ल्यू कोसेंट स्पेस का एलिमेंट कैसे होगा, एक्स प्लस डब्ल्यू, कोसेट ऑफ डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू। तो अगर यहाँ पे कोई भी हमने वी बाई डब्ल्यू में कोई भी एलिमेंट हमने लिया एक्स प्लस डब्ल्यू, तो एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, वी में, और टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डब्ल्यू। कोई भी एक्स प्लस डब्ल्यू ले रहे हैं तो यहाँ एक्स वी में बिलोंग कर रहा है कि टी ऑफ एक्स एक्स प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। इसका मतलब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारा लीनियर है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कर्नल एंड इमेज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल एंड इमेज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। So let T from vector space V1 to V2 be a linear transformation. Let T from vector space V1 to vector space V2 be a linear transformation. Then kernel of T, kernel of T written as ker T is defined as कर टी इक्वल टू B1 के उन वेक्टर का कलेक्शन जो B2 के जीरो पे मैप हो रहे हैं, x बिलोंग टू B1 सच दैट T ऑफ x इक्वल टू 0। such that T of x equal to 0। अब देखो, सिंस T ऑफ 0 इक्वल टू 0, T अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो B1 के 0 को B2 के 0 पे मैप करेगा। तो इसका मतलब क्या है, सो 0 ऑलवेज बिलोंग टू कर्नल ऑफ T, कर T। इसका मतलब क्या है, कर T इज नॉट इक्वल टू 5, कर T इज नॉट एन एम्प्टी सेट।
नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे इमेज टी क्या होता है। नाउ द इमेज टी written as यहाँ IMT का मतलब है इमेज टी, इमेजनरी मतलब नहीं है। इमेज टी इज कैसे डिफाइन है, इज डिफाइंड एज इमेज टी इक्वल टू टी ऑफ B1। ये कौन सा सेट है, Tx सच दैट x बिलोंग टू B1। B1 के सभी एलिमेंट के इमेजेस का कलेक्शन सेट, इसको हम बोलते हैं इमेज टी। नाउ द डायमेंशन, अब हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ B1 एंड इमेज टी इज ए सब स्पेस ऑफ B2। तो नेक्स्ट ये थ्योरम है, let T from a vector space B1 to a vector space B2 where B1 and B2 are vector spaces over the same field F be a linear transformation। then kernel T is a subspace of B1, kernel T is a subspace of vector space B1 and image T is a subspace of vector space B2। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, पहले हम प्रूफ करेंगे कर्नल टी जो है B1 का सब स्पेस है। तो कर्नल टी कैसे डिफाइन है, कर्नल ऑफ टी इक्वल टू x बिलोंग टू B1, B1 के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिनको T B2 के जीरो पे मैप कर रहा है। तो x इन B1 सच दैट T ऑफ x इक्वल टू 0। इस कर्नल टी को क्लियरली कर्नल टी इज ए सब स्पेस इज ए सबसेट ऑफ, दिस इज सबसेट ऑफ B1। कर्नल टी में जो भी एलिमेंट हैं वो सब B1 के एलिमेंट हैं। तो इसको प्रूव करना है कि दिस इज सब स्पेस ऑफ B1। तो फॉर दिस लेट एक्स वाई बिलोंग टू कर्नल ऑफ टी एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू द फील्ड F। तो अब अगर एक्स वाई कर्नल टी में बिलोंग कर रहे हैं देन, अगर x कर्नल टी में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब t x को जीरो पे मैप कर रहा है, देन t ऑफ x इक्वल टू 0। और y कर्नल टी में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब t y को भी जीरो पे मैप कर रहा है, t ऑफ y इक्वल टू 0। नाउ t ऑफ अल्फा, अब कर्नल t B1 का कब सब स्पेस हो जाएगा, अगर हम ये प्रूव कर दें कि कोई भी दो एलिमेंट x y अगर हम कर्नल t में ले रहे हैं और दो स्केलर अल्फा बीटा ले रहे हैं, तो अगर हम ये शो कर दें कि अल्फा x प्लस बीटा y कर्नल t में बिलोंग कर रहा है तो फिर प्रूफ हो गया कि कर्नल t सब स्पेस है। तो अल्फा x प्लस बीटा y कर्नल t में कब बिलोंग करेगा, जब t अल्फा x प्लस बीटा y को जीरो पे मैप कर दे।
तो हम टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई ये कैलकुलेट करेंगे। तो टी चूँकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई अभी बताया था इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में कि टी इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम b1 to b2 देन टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बी इफ एंड ओनली इफ टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फ़ा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ जीरो सॉरी टी ऑफ वाई। अब टी ऑफ एक्स क्या है, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा जीरो प्लस बीटा जीरो, और अल्फ़ा जीरो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो जब टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई जीरो है इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग टू कर्नल ऑफ टी फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू द फील्ड एफ and for all xy belong to kernel of T. Thus kernel T is a subspace of vector space V1। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे इमेज टी इज सब स्पेस ऑफ V2। फर्दर लेट x1 y1 belong to image T। तो क्या होगा देन, तो अब अगर x1 y1 इमेज T में बिलोंग कर रहा है तो फिर क्या होगा, कोई वेक्टर x मिलेगा b1 में सच दैट टी ऑफ x इक्वल टू x1 होगा, और कोई वेक्टर y मिलेगा b1 में सच दैट टी ऑफ x इक्वल टू y1 होगा। देन देयर एग्जिस्ट x y बिलोंग टू वेक्टर स्पेस v1 सच दैट टी ऑफ x इक्वल टू x1 एंड टी ऑफ y इक्वल टू y1। नेक्स्ट हमको प्रूव क्या करना, हमको प्रूव करना है कि इमेज टी इज सब स्पेस ऑफ V2। तो इमेज टी कैसे डिफाइंड है, इसको हमको पहले लिखना चाहिए था। नाउ अल्फा x1 प्लस बीटा y1 ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 इक्वल टू है टी ऑफ x प्लस बीटा y1 इक्वल टू है टी ऑफ y। तो अल्फा टी ऑफ x प्लस बीटा टी ऑफ y। अब क्यों टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अल्फा टी एक्स हो जाएगा टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा टी वाई हो जाएगा टी ऑफ बीटा वाई। अब फिर टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये हो जाएगा टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, एंड दिस इज बिलोंग टू इमेज ऑफ टी। दस तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि B1 का एक एलिमेंट मिल गया अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई सच दैट टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू है अल्फा x1 प्लस बीटा y1। इसका मतलब क्या है, अल्फा x1
plus beta y1, this belong to image T, and this implies image T is a subspace of U. Hence image T is a subspace of vector space V2. नेक्स्ट है हमारा रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डिफिनीशन हम देखेंगे। नेक्स्ट है रैंक एंड नलिटी। रैंक एंड नलिटी of a linear transformation. Let T from B1 to B2, where B1 and B2 are vector spaces over the same field F, let T from B1 to B2 be a linear transformation. तो अभी ऊपर हमने प्रूव किया। देन कर्नल T is a subspace of B1, and image T is a subspace of B2. द डायमेंशन, तो कर्नल टी अगर B1 का सब स्पेस है तो जो कर्नल टी की डायमेंशन है उसी को हम बोलते हैं नलिटी ऑफ टी, द डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी। द डायमेंशन ऑफ kernel of T is called nullity of T. Nullity of T. अब इमेज टी V2 का सब स्पेस है तो इमेज टी की डायमेंशन को हम बोलते हैं रैंक ऑफ टी। द डायमेंशन ऑफ image T is called rank of T. Rank of T and denoted by rho T. Rank of T. नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे, उसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे। इसको हम बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम या फिर डायमेंशन। उसके पहले एक थ्योरम और हम देखेंगे, उसके बाद हम रैंक नलिटी थ्योरम पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है theorem, let B1 and B2 be vector spaces. Let B1 and B2 be vector spaces let B1, B2 and so on Bn
be a basis of vector space B1. Again, let W1, W2 and so on Wn be n vectors in B2, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, कोई ज़रूरी नहीं कि सब अलग अलग हों, सेम भी हो सकते हैं। देन तो यहाँ पे क्या है कि कोई एक बेसिस हमने ले ली है B1, B2, Bn और वेक्टर स्पेस B2 के हमने n एलिमेंट ले लिए W1, W2, Wn। तो अगर n एलिमेंट B2 के हमने W1, W2, Wn ले लिए हैं तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा B1 से B2 में, वेक्टर स्पेस V1 से वेक्टर स्पेस B2 में, जो कि V1 को W1 पे, B2 को W2 पे, B3 को W3 पे एंड सो ऑन, Bn को Wn पे मैप करेगा। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then there exists a unique linear transformation T from B1 to B2 such that T of Bi equal to Wi for all I equal to 1, 2, 3 up to n। मतलब केवल एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा B1 से B2 में, जो कि बेसिस के एलिमेंट स्मॉल b1 को W1 पे, B2 को W2 पे, B3 को W3 पे एंड सो ऑन, Bn को Wn पर मैप करेगा। तो इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वेक्टर स्पेस B1 से वेक्टर स्पेस B2 में, जो कि स्मॉल b1 को W1 पे, स्मॉल b2 को W2 पे एंड B3 को W3 पे एंड सो ऑन, Bn को Wn पर मैप करेगा। तो लेट V बिलोंग टू वेक्टर स्पेस B1, लेट स्मॉल v बिलोंग टू वेक्टर स्पेस B1, तब क्या होगा, then there exist unique scalars alpha 1, alpha 2, alpha n such that v equal to alpha 1 b1 plus alpha 2 b2 plus alpha 3 b3 and so on alpha n bn, because b1 b2 bn is a basis of vector space B1, then b equal to b is a linear combination of basis, unique linear combination of basis element, b equal to alpha 1 b1 plus alpha 2 b2 and so on plus alpha n bn, where alpha I belong to field F for all I equal to 1, 2 up to n। अब हम डिफाइन कर रहे हैं, नाउ डिफाइन a linear transformation T from vector space B1 to vector space B2 given by T of alpha 1 B1 plus alpha 2 B2 and so on plus alpha n Bn, this is equal to alpha 1 W1 plus alpha 2 W2 and so on plus alpha n Wn। तो T कैसे डिफाइन हो रहा है, B1 B2 अप टू Bn के प्ले को हमने W1 W2 अप टू Wn से रिप्लेस कर दिया जस्ट। अब प्रूव करेंगे कि ये
टी जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये टी जो है V1 को W1 पे, V2 को W2 पे एंड सो ऑन, Bn को Wn पर मैप कर रहा है। और ये टी यूनिक है कि कोई दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं हो सकता। तीन चीज हम प्रूव करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि टी बी आई किसी V1 को कहाँ मैप कर रहा है। टी ऑफ बी आई, टी किसी बी आई को, टी V1 को कहाँ मैप कर रहा है पहले हम देखते हैं। टी ऑफ B1 इक्वल टू, तो B1 को हम लिख सकते हैं B1 प्लस 0B2 प्लस 0B3 एंड सो ऑन प्लस 0Vn। तो अब टी अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा n Vn को कहाँ मैप कर रहा है, अल्फा 1 W1 प्लस अल्फा 2 W2। जस्ट हम B1 B2 Bn के प्लेस पे W1 W2 Wn रिप्लेस कर देंगे, तो ये कहाँ इसको मैप करेगा, W1 प्लस 0W2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 0Wn, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू W1। तो T इस B1 को कहाँ मैप कर रहा है, W1 पे। T B2 को कहाँ मैप कर रहेगा, T ऑफ B2। तो अब हम B2 को लिख सकते हैं T ऑफ 0B1 प्लस B2 प्लस 0B3 एंड सो ऑन प्लस 0Bn। अब ये कहाँ मैप हो जाएगा, B1 B2 Bn को हम W1 W2 Wn से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0W1 प्लस W2 एंड प्लस 0W3 एंड सो ऑन प्लस 0Wn, एंड ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू W2। एंड सिमिलरली TWn को कहाँ मैप, सॉरी TVn को कहाँ मैप करेगा, TBn को कहाँ मैप करेगा, T ऑफ Bn। तो हम Bn को लिख सकते हैं T ऑफ 0B1 प्लस 0B2 एंड सो ऑन प्लस 0Bn-1 प्लस Bn। और ये क्या हो जाएगा, इस वेक्टर को T कहाँ मैप करेगा, B1 B2 Bn को हम W1 W2 Wn से रिप्लेस कर देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ T। तो ये क्या हो जाएगा, 0W1 प्लस 0W2 एंड सो ऑन प्लस 0Wn-1 प्लस Wn, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, Wn की। तो मतलब यहाँ पे टी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो V1 को V2 पे, V1 को W1 पे, V2 को W2 पे एंड सो ऑन Bn को Wn पे मैप कर रहा है। अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे और क्लेम इज टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा ये क्लेम है, अभी अपने क्लेम को जस्टिफाई करेंगे। टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम ले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, तो B1 के दो एलिमेंट हम ले रहे हैं, x और y। तो लेट x y बिलोंग टू B1, और दिस लेट x y बिलोंग टू वेक्टर स्पेस B1। तो क्या आएगा, देन B1 की बेसिस है, वेक्टर स्पेस B1 की बेसिस है B1 B2 Bn। तो कोई भी B1 का एलिमेंट लेंगे वो बेसिस एलिमेंट का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा समेसन i इक्वल टू 1 to n अल्फा i bi एंड y इक्वल टू y इज आल्सो यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट। तो y इक्वल टू हो जाएगा i इक्वल टू 1 to n बीटा i bi। अब x प्लस y क्या हो जाएगा, एंड x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा समेसन अल्फा i इक्वल टू 1 to n प्लस समेसन i इक्वल टू 1 to n बीटा i bi। इसको हम लिख सकते हैं समेसन i इक्वल टू 1 to n
अल्फा आई प्लस बीटा आई, दिस बी आई। अब टी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा? टी ऑफ नाउ टी ऑफ एक्स प्लस वाई, ये क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू टी ऑफ समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई प्लस बीटा आई बी आई। तो टी इस समेसन का मतलब है टी ऑफ अल्फा वन प्ले आई इक्वल टू 1 रखेंगे तो आएगा अल्फा वन प्लस बीटा वन बी वन प्लस अल्फा टू प्लस बीटा टू b2 and so on plus alpha n plus beta n this bn। और इस एलिमेंट को t कहाँ मैप करेगा? b1 b2 bn को हम w1 w2 wn से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा वन प्लस बीटा वन w1 प्लस अल्फा टू प्लस बीटा टू w2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन प्लस बीटा एन डब्लू एन। और ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू अल्फा वन डब्लू वन प्लस अल्फा टू डब्लू टू एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन डब्लू एन प्लस, क्योंकि वेक्टर स्पेस एडिशन कॉम्पिटिटिव है और ये अल्फा वन प्लस बीटा वन डब्लू वन बाई वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी से हो जाएगा अल्फा वन डब्लू वन प्लस बीटा वन डब्लू वन प्लस बीटा वन डब्लू वन प्लस बीटा टू डब्लू टू एंड सो ऑन प्लस बीटा एन डब्लू एन। और ये क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू बाई डिफिनीशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी प्लस अल्फा एन बी एन प्लस टी ऑफ बीटा वन बी वन प्लस बीटा टू बी टू एंड सो ऑन प्लस बीटा एन बी एन। और ये हो गया हमारा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी ऑफ समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी आई प्लस टी ऑफ समेसन बीटा आई बी आई इक्वल टू 1 to n। और ये हो गया हमारा टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई, कोई भी एक्स वाई लिया जाए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू बी वन। अगेन टी ऑफ अल्फा एक्स, ये हो जाएगा टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू है समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी आई। अब ये इक्वल टू हो जाएगा टी ऑफ अल्फा, इस समेसन को हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन बी एन। और ये हो जाएगा जब अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये हो जाएगा टी ऑफ अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन बी एन। अब टी इस एलिमेंट को कहाँ मैप करेगा? बी वन बी टू बी एन को हम डब्लू वन डब्लू टू डब्लू एन से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा वन डब्लू वन प्लस अल्फा टू डब्लू टू एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन डब्लू एन। सब में हम अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा वन डब्लू वन प्लस अल्फा टू डब्लू टू एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन डब्लू एन। अब ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ
अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, एंड सो ऑन, प्लस अल्फ़ा n bn। और ये क्या चीज़ है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा टी ऑफ समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा आई बी आई, और यही है इक्वल टू अल्फ़ा टी ऑफ एक्स for all alpha belong to field F and for all x belong to V1। इसका मतलब क्या है, therefore hence T is a linear transformation, T is a linear transformation। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि T is यूनिक। तो इसके लिए क्या करेंगे, let T1 be a linear transformation, let T1 from vector space V1 to V2 be a linear transformation such that T1 of Bi equal to Wi for all I equal to 1 to up to n। मतलब T1 ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो V1 को W1 पे, V2 को W2 पे, V3 को W3 पे एंड सो ऑन, Vn को Wn पे मैप कर रहा है। तो अब हम प्रूव करेंगे कि T1 इक्वल टू T। तो लेट V बिलोंग टू V1, V बिलोंग टू वेक्टर स्पेस V1, तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n सच दैट B इक्वल टू अल्फ़ा 1 B1 प्लस अल्फ़ा 2 B2 एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा n Bn, ऐसा होगा। देन T of V, this is equal to T of alpha 1 B1 plus alpha 2 B2 and so on plus alpha n Bn। ये कितना आएगा, तो चूंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो बाई लीनियरिटी ऑफ T ये हो जाएगा, सॉरी T1 कैलकुलेट कर रहे हैं, T1 ऑफ V ये हो जाएगा, चूंकि T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 T1 B1 प्लस अल्फ़ा 2 T2 B2 because T is a linear transformation and so on प्लस अल्फ़ा n, ये T1 रहेगा, सॉरी प्लस अल्फ़ा 2 T1 प्लस अल्फ़ा n T1 Bn। अब T1 B1 कितना है, ये है अल्फ़ा 1 W1 प्लस अल्फ़ा 2 W2 एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा n Wn। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं T ऑफ अल्फ़ा 1 B1 प्लस अल्फ़ा 2 B2 एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा n Bn। T ऑफ अल्फ़ा 1 B1 प्लस अल्फ़ा 2 B2 एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा n Bn की यही वैल्यू आएगी ऊपर जो लिखी है। और ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू T ऑफ B। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज T1 ऑफ B इक्वल टू T ऑफ B for all B belong to B1 and this implies T1 equal to T2, T1 equal to T, sorry, hence T is unique। thus T is unique। ऐसा केवल एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो B1 को W1 पे, B2 को W2 पे एंड सो ऑन Bn को W1 पे मैप करेगा। अब ये थ्योरम क्या कह रही है
कि अगर किसी वेक्टर स्पेस V1 से वेक्टर स्पेस V2 पे हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना है तो हम V1 की कोई भी बेसिस ले लें और केवल हम बेसिस के एलिमेंट की अगर इमेजेस बता दें, बेसिस के एलिमेंट की इमेजेज अगर हम डिफाइन कर दें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल। रैंक नलिटी थ्योरम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक्स।